प्रॉब्लम 3-25 क्या है कि आपको एक रोप्स का सिस्टम शो किया गया है एंड यू नीड टू डिटरमिन द मैक्सिमम वेट ऑफ दिस बकेट दैट दिस वायर सिस्टम कैन सपोर्ट such that no wire develops a tension exceeding 100 pounds. आपको बकेट का वो रिक्वायर्ड वेट फाइंड करना है जो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखे, और कंडीशन क्या है कि किसी भी वायर की टेंशन जो है दैट शुड नॉट एक्सीड value of 100 pounds. Okay, so in order to solve the system, किसकी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी चाहिए स्टार्ट में? सर फर्स्ट हमें बी की बनानी चाहिए सर। सर बी और ई की बनेगी। चलें बी और ई की बनेगी। लेट मी स्टार्ट, चूंकि विद एनी वन ऑफ दीज पॉइंट से मैं ई से स्टार्ट करता हूं चूंकि बकेट का वेट पॉइंट ई के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। सो वंस आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ई, the weight of this bucket which is being represented by W, it would be acting downward. Then I'm going to have a force जिसको मैं FED या TED जिससे भी आप represent करना चाहें उससे represent कर सकता हूँ. So this is force ED acting at an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. Okay, the third force which would be acting at point E is going to be this force जिसको F BE का मैंने नाम दिया है, या FEB कह लें, जो भी आप डिनोट करना चाहें आप इसको जो है वो डिनोट कर सकते हैं. एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉलर ट्राइंगल 3, 4, 5 फॉर द डायरेक्शन. सो मैं इसको थोड़ा सा दो हिस्सों में स्क्रीन को डिवाइड कर देता हूं सो दैट आई कैन सॉल्व इट. ओके, अप्लाइंग द condition of equilibrium first of all at point E, I am going to consider point E. So considering point E and writing the equations of equilibrium, which is summation fx equal to 0. What are the forces which are acting at point E along the x-axis? FED cos of 30. Okay, FED cos of 30. And minus FEB e by 5. So minus FEB and any multiplying factor is going to be 3. That should be equal to 0. So let me call it as equation number 1. Writing the second condition of equilibrium, which is summation Fy equal to 0. The forces which are acting along the y-axis are Fed sine 30 with a positive sign. The other force is going to be plus Feb 4 over 5. Anything else? Minus Yes sir, weight. Minus weight. Okay. So how many equations are there? सर 2. Unknowns कितने हैं? सर अननोन भी 2 है सर. 3 है सर अननोन. जी, वेट भी तो अननोन है. Yes, sir, weight. So there are 3 unknowns. So 2 equations, 3 unknowns. Could the system be solved uniquely? नो सर. No. अच्छा, तो क्या shall I move to next point? शायद मे बी B की जगह फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे कोई क्लू मिल जाए वहां से. Okay, so in order to draw the free body diagram of B, the forces which are acting on point B is, one is this force जिसको मैं FBC से represent करता हूँ, and this force is acting at an angle of 30 degrees. The second one is force BA, which would be acting towards the negative x-axis. इसको मैं represent करता हूँ FBA के साथ. What about the third force? सर FEB. तो FEB है और वो इसी स्मॉलर ट्राइंगल से हम जज कर सकते हैं. ओके, नाउ अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन B, starting with x equation summation fx equal to 0. The forces which are acting at point B along the x-axis are FBC cos of 30 minus FBA. जी, और कुछ भी आएगा? So FBC cos 30 minus FBA plus FEB 3 over 5 to be equal to 0. यही equation होगी? Yes sir. So let me call it as equation number 3. The next one is summation Fy equal to 0. So मैंने y-axis के along इसी equation को apply किया, summation Fy equal to 0. The forces which are acting along y-axis are FBC sine of 30 minus FEB 4 over 5.
should be equal to 0. अब 4 इक्वेशन मेरे पास आ गई. Now how many unknowns are there in these equations? कितने unknowns हैं? सर इसमें भी 3 हैं. सर टोटल 5 होंगे. ओवरऑल इन 4 इक्वेशन में 5 unknowns आ रहे हैं. ऐसे ही है. यस सर. 4 केबल की फोर्सेस हैं, BA BC. सर एक कॉमन है और दो अलग अलग है. फोर्सेस ई भी कॉमन है दोनों में. अच्छा, तो अब 4 इक्वेशंस 5 अननोन. कोई आइडिया है किस तरह इसको हमें सॉल्व करना चाहिए? कोई आइडिया दें. सर अगर हम ऐसा कुछ करें कि ईबी को कैंसिल आउट कर दें सॉल्व करके. मेरा तो नहीं ख्याल कि ईबी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. सर हमें 100 एलबी दिया हुआ है. इक्वेशन 2 और 4 को अगर ऐड कर दें हमको. 100 एलबी दिया हुआ है सर हमें. टेंशन जो है 100 पाउंड्स दिया हुआ है. किसी भी एक केबल में 100 पाउंड से टेंशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए. एक तो ये कंडीशन दी हुई है. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम तमाम फोर्सेस को कैसे आप ये किसको 100 पाउंड पुट करेंगे? सर ये FEB होगा क्योंकि टेंशन उसमें आई थिंक सो होगी 100 पाउंड या ज्यादा होगी. ये आपका ख्याल है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? सर लॉजिक सर बताता हूँ एक मिनट. चलें बाकी स्टूडेंट भी सोच लें कि ये 100 पाउंड हम इन चारों केबल फोर्सेस में से किसको पुट करेंगे. एक तो देखें हिट एंड ट्रायल वाला तरीका है. हिट एंड ट्रायल वाला तरीका क्या है कि एक दफ़ा आपने ED को पुट कर दिया, वैल्यूज निकाली, फिर एक दफ़ा EB को पुट कर दिया, फिर वैल्यूज निकाली, एक दफ़ा BC को पुट कर दिया, फिर वैल्यूज निकाली, एक दफ़ा BA को पुट कर दिया, फिर वैल्यूज निकाली. प्रोबेबली आपका आधा पौन घंटा इस इटरेशंस में लग जाएगा. ये 4 इटरेशंस आप करेंगे. तो इज देयर एनी लॉजिकल वे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन rather than hit and trial? सर क्योंकि वेट भी उसी पे एक्ट कर रहा है. ऊपर वाली स्ट्रिंग तो ऐसे उसको वो भी उसको अपनी तरफ खींच रही है. सर फिर वो आप जो कहेंगे कि सर ये वैसे ही बताया, लेकिन आई थिंक सो सर इसमें FEB में एक्ट करेगी. अच्छा, इसमें एक लॉजिकल सॉल्यूशन तो ये हो सकता है. जी बताएं. ऐड करेंगे उसमें जो सब इक्वेशंस में. क्या करेंगे? FEB में सर ऐड करेंगे. किसको ऐड करेंगे? जो सर 100 वो है उसको FEB में करेंगे. कैसे? लॉजिक क्या है सर? ये इक्वेशन में भी है ना सर, दोनों हॉरिजॉन्टल में है. सही स्पेस पे बता रहे हैं कि हर मतलब ये इक्वेशन में FEB आता है तो इसलिए सर ठीक है सर. सब बता रहे हैं हर. अब थोड़ा सा बाकी लोग खामोश हैं, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है. वन पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशन इज कि अगर मैं इन तमाम फोर्सेस को जो कि केबल फोर्सेस हैं BE BA BC and ED, इनको इन टर्म्स ऑफ W निकाल लूं. क्या ये पॉसिबल है निकालना? मसलन अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं इन टर्म्स ऑफ W निकालता हूं तो मेरे पास FEB आ जाता है विच इज इक्वल टू 0.87 W. इसी तरह मेरे पास FED आ जाता है विच इज 0.604 W. ठीक है. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने ये जो दोनों फोर्सेस थी EB और ED इनको इन टर्म्स ऑफ W निकाल लिया विच इज द वेट ऑफ दिस बकेट. FEB मेरे पास आ गई 0.87 W और FED आ गई 0.604 W. अब मैं जब पॉइंट B को कंसिडर करता हूं मेरे पास FBA आ जाती है विच इज 1.73 W. मैं एक सेकंड अभी आपको समझाता हूं, थोड़ा सा गौर से इधर देखें. मैंने किया क्या है कि मैंने चारों फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ W निकाल ली है. कैसे निकाला है अगर उसके हवाले से बात करें तो पहली 2 इक्वेशंस को देखें. इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि FED जो है it should be equal to FEB into 3/5 divided by cos 30. So it would comes out to be 0.6928 FEB. ऐसा ही है ये फर्स्ट इक्वेशन में FEB को FED के रिस्पेक्ट से वैल्यू निकाली. देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन से FED की वैल्यू निकाली विच इज गोइंग टू बी FEB into 3/5 divided by cos 30. ऐसा ही है. यस सर. तो ये आपके पास आ गई FED इक्वल टू 0.6928 FEB. अब आपने ये इस FEB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी.
तो आपके पास FED जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास FEB इन टर्म्स ऑफ W आ जाएगा। ऐसे ही है, काइंडली ठीक है जवाब सर। ठीक है। इस तरह Yes, मेरे sir. पास ये Yes, दोनों sir. फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ W आ गई। यहाँ तक क्लियर है रेक को? यस सर। अच्छा, अब राइट साइड पे आ जाए। जब मैंने B की बात की है, आपको EB इन टर्म्स ऑफ W मिल गई है, ठीक है। आपने BC इन टर्म्स ऑफ W निकाल लिया विच इज 1.39, BC भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ W, तो आपने BA निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ W विच इज 1.73 W। तो तमाम फोर्सेस जो अननोन थी वो आपको इन टर्म्स ऑफ W मिल गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है हर एक को? सर एक दफा रिपीट कीजिएगा सर, इसकी नहीं समझ आई थोड़ी बहुत ये ना। देखें, ये जो मैंने EB और ED इन टर्म्स ऑफ W लिखी है, ये समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब ये समझ आ गई है तो वही लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई किया है। सबसे पहले मुझे EB इन टर्म्स ऑफ W चूंकि मिल चुकी है, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में EB की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ W डाल दूं तो मुझे BC की वैल्यू W मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, अब BC भी W की टर्म में मिल गया, EB भी W की टर्म में मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 3 से मुझे BA भी W की टर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। चलें, अब आपको चारों फोर्सेस W की टर्म्स में मिल गई हैं। थोड़ा सा आप मुझे लॉजिकली बताएं कि ये 100 पाउंड्स मैं किस फोर्स के बराबर रखूंगा, या किस फोर्स को मैं इस मैक्सिमम टेंशन के बराबर रखूंगा। आप जरा लॉजिकली सोच के बताएं। सर FBA। वजह? सर उसके साथ जो मल्टीपल है वो सबसे बड़ा है। दैट्स करेक्ट। सो बेसिकली लॉजिकली ही मैं आपसे कह रहा था कि लॉजिकली चलें। आपने सारों को इन टर्म्स ऑफ W निकाल लिया। अब ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो है वो आप इक्वल टू FBA लेंगे। सो यू आर गोइंग टू पुट FBA टू बी इक्वल टू दिस मैक्सिमम फोर्स so that you can get W's value to be equal to W equal to 57.7 पाउंड। तो आपके पास W की वैल्यू 57.7 पाउंड्स आ गई। अब जिस स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया था वो मुझे ये बताएगा कि आपने कैसे जज किया कि ये FBA 100 होनी चाहिए। आपका जवाब ये था कि चूंकि W का मल्टीपल सबसे बड़ा है तो आपने FBA को पुट कर लिया, लेकिन अगर आप किसी और में पुट करते तो नुकसान क्या था? सर वो मैक्सिमम फोर्स क्या कहते हैं, मैक्सिमम फोर्स तो ना आती। ठीक है, अब मसलन मैं अगर W की वैल्यू पुट करता हूं इस FBC में, ये 57.7 पाउंड, तो मुझे इसकी क्या वैल्यू मिलेगी? 1.396 इंटू 57.7। डेफिनेटली 100 से कम मिलेगी। ऐसे ही है क्योंकि 100 इसका मल्टीपल छोटा है 1.73 से W का। क्योंकि सर हमें मैक्सिमम वेट चाहिए ना, तो जहाँ पे हमें नजर आएगा कि टेंशन ज्यादा लग रही है, मतलब यानी कि वेट के लिहाज से, तो वहाँ पे हमारा वेट ज्यादा होगा। नहीं, देखिए हमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है ना कि किसी भी केबल से अंदर फोर्स जो है वो 100 पाउंड से एक्सीड ना करे। ये कंडीशन है जो कि हमें सेटिस्फाई करनी है। अगर मैं किसी और वैल्यू, सपोज चलिए मैं आपको समझाने के लिए लेट अस सपोज कि मैं FBC को 100 के बराबर पुट कर देता हूँ। सपोज जस्ट फॉर सपोजिशन मैं कहता हूँ FBC की वैल्यू मैं 100 पाउंड ले लेता हूँ। इससे मुझे वेट की क्या वैल्यू मिलनी थी? 100 ओवर 1.396। ऐसे ही है? यस सर। तो वेट की वैल्यू आ जाती 71.6 पाउंड। अब इस 71.6 के हिसाब से जब मैं FBA कैलकुलेट करता हूं, FBA क्या है? 1.73 टाइम्स वेट। तो 1.73 टाइम्स 71.6 विच कम्स आउट टू बी 123। तो क्या 123 FBA हो सकता है? नो सर। 100 से तो एक्सीड ही नहीं कर सकता। लिहाजा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जिस फोर्स के साथ वेट का सबसे बड़ा मल्टीपल आ रहा था उस फोर्स को 100 पाउंड कर लिया, ताकि बाकी तमाम फोर्सेस अब इससे जो है वो छोटी आएंगी। कोई फोर्स इससे बड़े मैग्नीट्यूड की नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑफ W। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लॉजिकली चले। अदरवाइज एक तो रैंडम सोल्यूशन था जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप एक एक करके हर फोर्स को 100 पुट करते जाएं और बाकियों की वैल्यू देखते जाएं। आपको 4 इटरेशन मिल जाएंगी, उन चारों में से कोई एक इटरेशन जो है वो सेटिस्फाई होती होगी।
लेकिन इस तमाम कैलकुलेशन में मे बी आपका 45 मिनट से 1 घंटा जो है वो ज़ाया हो जाए। इसलिए लॉजिकल सोल्यूशन क्या है कि आपने तमाम फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ W निकाल लिया। जिस फोर्स के साथ W का सबसे बड़ा मल्टीपल आ रहा था आपने उसको 100 के बराबर पुट कर लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बाकी सारी फोर्सेस अब जो है वो 100 से कम आएंगी। आई होप दैट दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।